میں نے تمہیں استاد مان لیا ہے، ڈاکو نے صغیر سے کہا، لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں استادوں کا استاد ہوں۔ مجھے باندھ کر کیوں رکھا ہے؟ صغیر نے پوچھا اور کہا، ہاتھ پاؤں کھول دو یار، میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ تمہیں خطرہ ہے کہ تمہارے ٹھکانے کی نشاندہی ہو جائے گی، میری طرف سے تمہیں ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لڑکی میری کچھ نہیں لگتی، اب بتاؤ ہندو ہو یا مسلمان؟ ڈاکو کے سردار نے پوچھا۔ مسلمان، صغیر نے جواب دیا۔ میرا نام اکبر ہے، میں بھی مسلمان ہوں، ڈاکو نے کہا اور پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ دلی، صغیر نے جواب دیا۔ سیر کے لیے شملہ آیا تھا، طبیعت سیلانی سی ہے، وہاں سے نیچے اتر آیا اور اسی جنگل میں گھوم پھر رہا ہوں، واپس چلا جاؤں گا اگر تم نے جانے دیا۔ مجھے شک ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، ڈاکو نے کہا۔ یہ شک بھی ہوتا ہے کہ تم CID کے آدمی ہو یا تمہارا تعلق پولیس یا فوج کے ساتھ تو ضرور ہے۔ میرا تعلق جس کسی کے ساتھ بھی ہے وہ تم بھول جاؤ، صغیر نے کہا۔ میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، مجھے اگر کچھ دن ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، میں بھاگوں گا نہیں۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ تمہارے 2 ریوالور میرے ہاتھ میں آ گئے تھے، میں تم چاروں کو آگے لگا کر سیدھا تھانے لے جاتا، لیکن میں نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی، مگر تم نے دھوکے میں مجھے نشے والا پراٹھا کھلا دیا، یہ تو میں نے کرنا ہی تھا، ڈاکو نے کہا۔ اس قسم کے 1-2 پراٹھے ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جنگل میں گھومتے پھرتے کبھی کبھی کوئی روپے پیسے والا آدمی مل جاتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح دوستانہ باتیں کر کے ایک پراٹھا کھلا دیتے ہیں، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کی جیب خالی کر لیتے ہیں، گھڑی اور انگوٹھی ہو تو وہ بھی اتار لیتے ہیں۔ یقین کرنا کہ میرے پاس جو ریوالور ہے یہ ایک آدمی سے اسی طرح اڑایا تھا، اسے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے باتیں کی اور پراٹھا کھلا کر سلا دیا اور اس کا ریوالور لے آئے، اسے وہیں پڑا رہنے دیا۔ تمہیں میں اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا اور لڑکی کو تو لانا ہی تھا، اسے جو پراٹھا کھلایا تھا وہ بھی نشے والا تھا۔ لڑکی ابھی تک سوئی ہوئی ہے، یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ صغیر نے پوچھا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس لڑکی اور اس لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں، یہ محض انسانی ہمدردی کی وجہ سے تھا کہ میں اسے اکیلے گھر تک لے جا رہا تھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی سیدھا سادہ شریف آدمی نہیں ہوں، وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، ڈاکو بولا۔ تم اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں نہ اس لڑکی کے گھر جاؤں گا نہ پولیس کے پاس، صغیر نے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح تمہیں یقین دلاؤں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک بات بتاؤ یار، ڈاکو نے پوچھا، تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ میں دلی کا رہنے والا ہوں، صغیر نے کہا۔ پہلے بھی بتایا ہے، کیوں بکواس کرتے ہو؟ ڈاکو نے کہا۔ تم پنجابی ہو اور سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ تم اس علاقے کے رہنے والے دیہاتی بھی نہیں ہو۔ یہاں تم کیا کر رہے تھے؟ تم مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میرا نام راشد ہے اور لوگ مجھے عرشی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولو، اپنا آپ مجھ پر ظاہر کر دو، خدا کی قسم دھوکہ نہیں دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کھول دیتا ہوں۔ عرشی نے اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں سے رسیاں کھول دی۔ صغیر اپنی کلائیاں اور ٹخنے ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ ڈاکو اسے پولیس کے حوالے نہیں کریں گے کہ یہ بھاگا ہوا جاسوس ہے یا مفرور ہے، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ڈاکو سے بلیک میل کرنا ہی شروع نہ کر دیں۔ عرشی اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا کہ وہ اسے اپنی اصلیت بتائے۔ وہ صغیر کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا کہ وہ دلی کا رہنے والا ہے اور ویسے ہی سیر سپاٹا کرنے اس جنگل میں نکل آیا ہے۔ کیا ڈاکہ زنی تمہارا خاندانی پیشہ ہے؟ صغیر نے پوچھا۔ نہیں، عرشی نے جواب دیا، میرا باپ اسی صدمے سے مر گیا تھا کہ اس کا بیٹا اس پیشے میں جا نکلا ہے۔ اس پیشے میں تم کس طرح آئے؟ سچی بات بتاؤں گا تو بھی نہیں مانو گے، عرشی نے کہا۔ میں مسلمان ہوں اور ہندوستان میں مسلمان ہونا بھی ایک جرم ہے۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، ہم دلی اور گڑگاؤں کے درمیان چھوٹے سے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے جس میں مسلمانوں کے صرف 4 گھر تھے اور باقی تمام گھر ہندوؤں کے تھے۔ ہماری ایک مسجد تھی، ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایسا ڈرانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا۔ کبھی ہندو مسجد کے دروازے کے آگے اینٹوں یا پتھروں یا ملبے کا ڈھیر لگا دیتے اور کہتے کہ فلاں کا مکان بن رہا ہے، اس طرح کوئی مسجد میں نہ جا سکتا۔ ایک روز ہم نے مسجد میں گھوڑوں کی لد اور مویشیوں کا گوبر پھینکا ہوا دیکھا، یہ ہندوؤں کی شرارت تھی۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مسلمانوں کے 6 اور لڑکے تھے جو مجھ سے بڑے تھے۔ ہم نے خفیہ میٹنگ کی کہ مسجد کو آباد کریں گے۔ ہم نے مسجد میں جا کر جھاڑو دیا اور وہاں کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ آج کے بعد مسجد کے دروازے کے آگے کسی نے کوئی اینٹ پتھر رکھا یا کسی ہندو نے کسی مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکا تو اس کی خیر نہیں۔ ہندوؤں کو چیلنج کرنا بہت بڑا خطرہ تھا اور پھر ہم مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ ہندو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس مسجد کو آباد ہونے ہی نہیں دیں گے۔
हम लड़कों ने पूरा प्रोग्राम बना रखा था। इसे तुम मेरी बेवकूफ़ी या ईमान का जज्बा कहो। मैंने हिंदुओं के चैलेंज को कबूल कर लिया। एक ठाकर जो इस गांव का बादशाह बना हुआ था आगे बढ़ा। मेरी जेब में चाकू था, मेरे साथियों के पास कुल्हाड़ियां और एक के पास बर्छी थी। ठाकर धमकियां देता हुआ आगे आया। मुझे मालूम था कि वो हमें थाने पहुंचा देगा और थाने वाले हम पर कोई झूठा केस बनाकर जेल में बंद कर देंगे और थाने में जो मार पिटाई होगी वो अलग होगी। मैंने बड़ी तेजी से चाकू खोला और ठाकर के पेट में फेर दिया। हिंदुओं में खलबली मच गई। मैं बचपन ही से बड़ा फुर्तीला था, पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। दरख्तों और दीवारों पर चढ़ना और तेज भागना दौड़ना, खड़नाले फलांगना मेरा मशगला था। मैंने ठाकर का पेट चाक किया और हिंदुओं के हजूम में से इस कदर तेजी से निकल आया कि कोई मुझे देख ही ना सका कि किधर निकल गया हूँ। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ अकबर भाई, मैं बच्चा था तो भी मुझे एहसास था कि मैं मुसलमान हूँ और हिंदू मुसलमान का दुश्मन है। और जब मैं डाकू बना और फिर डाकुओं का सरदार बना तो भी ये एहसास जिंदा है कि मैं मुसलमान हूँ और अपने मुकद्दस मजहब इस्लाम के खिलाफ मामूली सी बात भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ये लड़की मुसलमान होती तो मैं इसके जिस्म को हाथ भी ना लगाता, लेकिन ये हिंदू है। मैंने इसका घर लूटा है और इस लड़की को महीना 2 महीने बीवी बना कर रखूंगा और फिर इसे छोड़ दूंगा कि अब अपने घर चली जाओ। मैं तुम्हें इतनी लंबी कहानी नहीं सुनाता। 15-16 साल की उम्र में एक ठाकुर को कत्ल करके भागा तो कहाँ जा निकला और डाकू किस तरह बना। बस इतना बता देना काफी है कि एक उस्ताद मिल गया था जिसने मुझे इस लाइन पर चला दिया और आज मैं उस्ताद हूँ। वो उस्ताद एक सिख था जिसने अपने सर के बाल और दाढ़ी साफ कर रखी थी। तुम भी मुसलमान हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पेशे का आदमी नहीं अर्शी भाई, सगीर ने कहा और वही झूठ बोला जो पहले बोलता रहा था कि वो वीजे के बगैर इंडिया में फंस गया है। भूला भटका इधर आ निकला है। उसने ये भी बताया कि उसकी एक टांग में गोली लगी थी और दूसरी टांग पर सांप ने काटा था और सन्यासियों और जोगियों ने उसे अपने पास रखकर उसकी बहुत खिदमत की। क्या तुम मुझे पाकिस्तान पहुंचा सकते हो? सगीर ने पूछा। मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, अर्शी ने कहा। मैं पंजाब में कभी भी नहीं गया, उन इलाकों से नावाकिफ हूँ। तुम्हें उसी रास्ते पर डाल दूंगा, आगे अल्लाह निगहबान है। सगीर भी कुछ कम उस्ताद नहीं था। उसने अपनी जुबान का जादू चलाकर अर्शी और उसके साथियों पर अपना एतमाद कायम कर लिया। सब ने मिलकर खाना खाया। मेरा एक काम कर दो उस्ताद, सगीर ने कहा। सन्यासी मेरे जख्म की मरहम पट्टी करते थे। मुझे वहां जाने दो वरना जख्म खराब हो जाएंगे। ये बंदोबस्त हो जाएगा, अर्शी ने कहा, लेकिन रात को वहां जाना पड़ेगा। रात आई तो ये सब ऐसे सोए कि उन्हें होश ही न रहा कि सन्यासियों के पास जाकर सगीर की मरहम पट्टी करानी है। सब थके हुए थे। रात का आखिरी पहर था कि एक आदमी ने अर्शी को आज जगाया और उसके कान में कहा कि गांव पुलिस के घेरे में है। अर्शी फौरन उठा और अपने साथियों को जगाया। सगीर भी उठा। अर्शी, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, यहाँ से निकल नहीं सकोगे। बाहर से ललकार सुनाई दी। वो छोटा सा एक गांव था, 10 नहीं तो 15 घर होंगे। पहाड़ी इलाकों के गांव ऐसे ही हुआ करते हैं। कुछ घर पहाड़ी की ढलवान पर, कुछ उसके ऊपर और 2-4 दाएं और बाएं गांव से हटकर। ये गांव कदरे हमवार जगह पर आबाद था, लेकिन उसके इर्द गिर्द का इलाका किसी पहलू हमवार नहीं था। टीले थे, टेकरियां और चट्टाने थी और जंगल खासा घना था। किसी घनी झाड़ी के करीब से गुजरने वालों को पता नहीं चल सकता था कि इस झाड़ी में कोई आदमी छुपा हुआ है। सगीर, अर्शी और उसके 3 साथी एक मकान के एक ही कमरे में सोए हुए थे। ये मकान अर्शी का अपना नहीं था। अर्शी उन डाकुओं में से था जो गरीब देहातियों की जान और उनके मालो माल के मुहाफिज बने रहते थे और उन्हें माली इमदाद भी दिया करते थे। गरीबों की बेटियों के जहेज के लिए अच्छी खासी रकमें दे दिया करते थे। इसके एवज देहाती उनके साथ हर तरह का ताउन करते थे और जब कोई डाकू किसी गांव में जा छुपता था तो देहाती उसके लिए पहरा दिया करते थे और पुलिस आ जाती तो उसे कबल अज वक्त खबरदार करके भगा दिया करते थे। गांव के एक आदमी ने सगीर और अर्शी को पहले ही जगा दिया था कि पुलिस आ गई है। फिर थानेदार की ललकार सुनाई दी। अर्शी के तीनों साथी भी जाग उठे। लड़की किसी और मकान में औरतों के पास थी। थानेदार की ललकार एक बार फिर बुलंद हुई। अब उसने ये भी कहा, अर्शी, दोस्तों की तरह मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। अर्शी के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। सगीर ने उसे पूछा कि इस इलाके के थानेदार का नाम क्या है। उसे मालूम था कि ये इस इलाके का थानेदार होगा। अर्शी ने बताया कि ये सब इंस्पेक्टर पंडित सुंदर दास की आवाज है और वो इस इलाके का थानेदार है। पहले कभी तुम इस तरह घेरे में आए हो? सगीर ने अर्शी से पूछा। एक बार, अर्शी ने जवाब दिया, लेकिन मैं निकल गया था। 2 साथी मेरे साथ थे, दोनों को मैं निकाल ले गया था। अब भी निकल जाएंगे, सगीर ने कहा। लेकिन उस्ताद, अर्शी ने कहा, उस लड़की को साथ लेकर निकलना बड़ा मुश्किल नजर आता है। तुम तो बिल्कुल ही अनाड़ी लगते हो अर्शी, सगीर ने कहा। रहने दो लड़की को यहीं,
तुम्हारे लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये लालच तुम्हें मरवा देगा। अर्शी अभी तक सगीर को डकैती के फन का उस्ताद समझ रहा था। सगीर ने उस आदमी से जो उन्हें इत्तला देने आया था पूछा कि उसके अंदाजे के मुताबिक पुलिस की नफरी कितनी होगी। मैंने हर तरफ घूम फिर कर नहीं देखा, उस आदमी ने बताया। थानेदार को पहचान लिया था, चांदनी की वजह से मैं आगे नहीं गया। एक मकान के साए में छुप कर देखा तो 4-5 कांस्टेबल नजर आए। मालूम होता है नफरी ज्यादा नहीं। थानेदार की ललकार एक बार फिर बुलंद हुई। अब उसने ये भी कहा, मैं सिर्फ 15 मिनट की मोहलत देता हूँ, फिर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और रिपोर्ट दूंगा कि तुमने हम पर पहले गोली चलाई थी। तुम ही कुछ सोचो उस्ताद, अर्शी ने सगीर से कहा। हमारे पास सिर्फ 2 ही रिवाल्वर हैं और गोलियां भी थोड़ी हैं। गोली चलाए बगैर निकलने की सोचो उस्ताद। सगीर ने ये गांव देखा नहीं था। अर्शी ने उसे धोखे में वो पराठे खिलाए थे जिनमें नशे वाली कोई चीज मिली हुई थी। सगीर गहरी नींद सो गया था और उसे उठाकर इस गांव में लाए थे। उसे मालूम ही नहीं था कि ये गांव कितना बड़ा है और इसके इर्द गिर्द की जमीन कैसी है। उसने अर्शी से कहा कि वो उसे अच्छी तरह समझाए कि ये गांव और इसका गिरदोनवा कैसा है। अर्शी ने उसे समझा दिया। सगीर ने अर्शी से रिवाल्वर ले लिया। उसके सिलेंडर में 6 गोलियां भरी हुई थी और 16-17 गोलियां बेल्ट में थी जो सगीर ने अपने साथ ले ली। वो उठा और दरवाजे से बाहर जा खड़ा हुआ। पंडित सुंदरदास, सगीर ने बड़ी बुलंद आवाज से सब इंस्पेक्टर को ललकारा। हमारे पास 3 राइफलें और 3 रिवाल्वर हैं। तुम इस वक्त मेरे एक आदमी की राइफल के निशाने पर हो। तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना। जरा दाएं बाएं हुए तो गोली तुम्हारे सीने से पार हो जाएगी। यहाँ सिर्फ अर्शी नहीं, मेरा नाम सुनोगे तो कांपने लग जाओगे। कोई बेवकूफी ना कर बैठना। अपना नाम बताओ, सब इंस्पेक्टर पंडित सुंदरदास ने कहा। नहीं पंडित जी, सगीर ने कहा, मेरा दिमाग हाजिर है, मेरी बात पर गौर करो। क्या चाहते हो? थानेदार ने पूछा। मैं चला जाऊं? तुम्हारा भला इसी में है, सगीर ने कहा। मैं उस बाप का बेटा हूँ और शागिर्द हूँ जिसे अंग्रेजों की फौज भी नहीं पकड़ सकी थी। अपने आप को और इन गरीब सिपाहियों को मेरे हाथों मरवा कर मुझे पापी ना बनाओ। खामोशी के साथ वापस चले जाओ। मैं तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को खाली हाथ नहीं रुखसत करूंगा। मुझे बुज़दिल ना समझो, थानेदार ने कहा। मैं किसी मंदिर का पंडित नहीं हूँ। मैं उन पंडितों में से हूँ जो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। पंडित जी महाराज, सगीर ने कहा, तुमने हमें 15 मिनट की मोहलत दी है। मैं तुम्हें 20 मिनट की मोहलत देता हूँ। अच्छी तरह सोच लो। इस वक्त तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। अपनी जगह से हिलना नहीं वरना मारे जाओगे। 20 मिनट बाद जवाब देना। पहली गोली मेरी तरफ से चलेगी। सगीर ने बड़ी ही बुलंद आवाज से गांव वालों से मुखातिब होकर कहा कि गांव का कोई आदमी बाहर ना निकले। उसके साथ ही सगीर ने चांदनी में देख लिया कि तंग सी ये गली थी और करीब ही एक और गली उससे मिलती थी और ये गांव बिल्कुल ही छोटा सा था। सगीर अंदर चला गया। अर्शी के दिमाग में एक तरकीब आ गई। उस मकान का छोटा सा सहन था। अर्शी सगीर को सहन में ले गया और एक गोड़ी दिखाई जो वहाँ बंधी थी। सहन में घास भी रखी हुई थी। अर्शी ने मकान वाले से कहा कि उसे एक खाली बोरी और रस्सी की जरूरत है। मकान वाले ने एक बोरी ढूंढकर अर्शी को दे दी। सगीर ने उससे पूछा कि वो करना क्या चाहता है। अर्शी ने कहा कि ये घास बोरी में डाल दो, फिर देखना क्या होता है। सगीर और अर्शी ने बोरी में घास डालनी शुरू कर दी और जब बोरी भर गई तो ये घोड़ी की पीठ पर खड़ी कर दी। फिर रस्सी लेकर उस बोरी को घोड़ी की पीठ पर बांध दिया। बोरी के इर्द गिर्द और ऊपर और दरमियान में 2 रस्सियां इस तरह कसकर बांध दी कि दूर से पता चलता था जैसे घोड़ी पर कोई आदमी सवार है। तब उसने सगीर को बताया कि उसकी स्कीम क्या है। सगीर ने घोड़ी खोली और अर्शी को साथ लेकर दोनों घोड़ी बाहर ले गए। घोड़ी को एक गली में खड़ा किया। घोड़ी का रुख गांव से बाहर की तरफ था। ये गली 3-4 मकानों के बाद बाहर निकल जाती थी। अर्शी ने खंजर की नोक बड़ी जोर से घोड़ी की पिछली टांग पर मारी और इसके साथ ही सगीर ने रिवाल्वर की एक गोली हवा में फायर की। घोड़ी खंजर लगने से और गोली के ऐसे जोरदार धमाके से बुदक कर सरपट भाग उठी। आजा पंडित सुंदरदास, हमें पकड़ ले, अर्शी ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा और इसके साथ ही रिवाल्वर ऊपर करके हवा में फायर किया। सगीर और अर्शी ने बड़ी जोर जोर से जमीन पर दोनों पांव इस तरह मारे जैसे 2-3 आदमी दौड़े जा रहे हों। घोड़ी चंद सेकंड में छोटे से इस मकान से निकल गई और गांव के बाहर दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दी। साफ पता चलता था कि पुलिस के आदमी घोड़ी के पीछे दौड़ पड़े हैं। घोड़ी की पीठ पर खड़ी बोरी दूर से बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे उस पर कोई सवार हो। पुलिस ने उस पर राइफलों का फायर खोल दिया। सगीर और अर्शी हिंदुस्तान की पुलिस से अच्छी तरह वाकिफ थे। हिंदुस्तान की पुलिस पाकिस्तान जैसी ही थी, रिश्वतखोर और बुज़दिल। जाली पुलिस मुकाबलों की आदि पुलिस डाकों के मुकाबले में ठहर ही नहीं सकती थी। कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं। ना सब इंस्पेक्टर पंडित सुंदरदास ने अपनी इस नफरी को किसी खास तरतीब और तंजीम में रखा था। वो खुद घोड़ी के पीछे दौड़ा तो उसके तमाम हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल वगैरह उसके पीछे दौड़ पड़े। सगीर, अर्शी और उसके साथी दूसरी तरफ से गांव से निकल गए।
उस पहाड़ी और जंगलाती इलाके में उन्हें पकड़ना मुमकिन नहीं था। किसी दरख्त के तने के साथ कोई आदमी लग कर खड़ा हो जाता तो किसी को नजर नहीं आता था। टेकरियां और टीले थे और सब्जा इतना ज्यादा कि कहीं भी छुपा जा सकता था। ये सब सिवाय सगीर के इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। जरा सी देर में वो खासी दूर चले गए। सगीर से अभी तेज नहीं दौड़ा जा रहा था क्योंकि उसकी टांगें जख्मी थी और जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। उधर घोड़ी के ताकुब में गई हुई पुलिस ने घोड़ी को मार लिया। घोड़ी को 3-4 गोलियां लगी। घोड़ी गिरी और जरा देर तड़प कर मर गई। थानेदार और उसके सिपाही वगैरह राइफलें आगे और उंगलियां ट्रिगरों पर रखे दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता मरी हुई घोड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें खतरा नजर आ रहा था कि उसकी पीठ पर बैठा हुआ डाकू मरते मरते उन पर रिवॉल्वर फायर कर देगा। आखिर उसे ललकारते हुए वो सब करीब पहुंचे तो देखा कि ये कोई सवार नहीं था बल्कि एक बोरी थी जिसमें घास भरी हुई थी। पंडित सुंदरदास ने अपने उन आदमियों को गालियां देनी शुरू कर दी जो उस तरफ खड़े थे जिस तरफ से घोड़ी भागी थी। वो थानेदार को ये बयान तो नहीं दे सकते थे कि उन्होंने जब घोड़ी पर सवार देखा और 2 गोलियां भी फायर हुई तो वो समझे कि ये डाकुओं का सरदार है जो दाएं बाएं फायर करता जा रहा है। उसे देखकर इस तरफ वाले पुलिस के आदमी इधर उधर छुप गए थे। पंडित सुंदरदास ने हुक्म दिया कि गांव में चलो और गांव के घर घर की तलाशी लो। दरअसल वो अपना गुस्सा और अपनी खफत गांव वालों पर निकालना चाहता था। पिछले पहर का चांद और ज्यादा रोशन हो गया था। पहाड़ी और जंगलाती इलाकों की चांदनी वैसे भी बहुत ही शफाफ हुआ करती है। थानेदार ने गांव में पहुंचते ही चिल्लाकर हुक्म दिया कि सब लोग बाहर आ जाएं। लोग पहले ही जाग उठे थे। थानेदार का हुक्म सुनकर वो खौफ के मारे दौड़ते बाहर आ गए। थानेदार ने उन्हें फहश नंगी गालियां देनी शुरू कर दी। पंडित जी महाराज, एक मुइमर आदमी ने हाथ जोड़कर और थानेदार के सामने जाकर कहा, डाकू अपना हुक्म चलाते हैं, ना मानो तो हमारी जान भी महफूज नहीं रहती और हमारी बेटियों की इज्जत भी। आप आते हैं तो आपका रोब और हुक्म भी हम पर ही चलता है। दोनों तरफ की गालियां और धमकियां हमारे ही हिस्से में आती हैं। ये भी अच्छा हुआ कि इस पंडित थानेदार को ये मालूम न हो सका कि गांव के एक आदमी ने पहले ही अर्शी को बता दिया था पुलिस आ गई है। उसे पता चल जाता तो उस आदमी को थानेदार वहीं गोली मार देता। बहरहाल उस पंडित को गांव वालों पर रहम आ ही गया। उसे मालूम था कि गांव वालों के ताउन के बगैर वो इन डाकुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी मफरूर मुलजिम को नहीं पकड़ सकता। उसने लोगों से कहा कि उसे बताया जाए कि ये डाकू किस वक्त और किस तरह इस गांव में आए थे। पहले मुझे उस घर में ले चलो जहां डाकुओं ने रात गुजारी है। थानेदार ने कहा। थानेदार को उस घर में ले जाया गया। वो उस घर को देखकर और रस्मी सी तलाशी लेकर वहीं बैठ गया और बयान सुनने लगा। इसके साथ ही उसने हुक्म के लहजे में गांव के एक बड़े आदमी से कहा कि उसके लिए और उसकी सारी नफरी के लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया जाए। उसे पहली बात ये बताई गई कि यहाँ एक घर में एक नौजवान लड़की है जिसे ये डाकू साथ लाए थे। दूसरी बात ये कि एक घर में एक जवान आदमी बंद है जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। उसे भी डाकू साथ लाए थे और यहाँ फेंक कर चले गए और एक आदमी को कंधों पर उठाकर वापस आए थे। यह आदमी बेहोश था जिसे पहले तो लोग मरा हुआ समझते रहे लेकिन वो भी अर्शी डाकू के साथ भाग गया है।